Hello students, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. If you are new to the channel, do subscribe the channel. And students, our today's topic is the nomenclature of bicyclo and the spiro compounds. As we know that this topic is very important for all the competitive examinations as well as for the PG students, because when we are in the higher classes, generally there are so many natural products which have the bicyclic structure. So now today let us start our topic. So bicyclo compounds आपके कौन से compounds होते हैं? They contain टू फ्यूज रिंग्स विद द हेल्प ऑफ ए ब्रिज. सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें टू रिंग्स होंगी एंड उन किससे जुड़े होंगे? विद द हेल्प ऑफ ए ब्रिज. फॉर एग्जांपल हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं. यहाँ पर आपने क्या देखा है, हमको CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH2 and in between there is one CH2 also. So just if you can imagine, this side is a one ring and this side is a another ring. ये आपको छोटा सा रिंग बन रहा है, हाफ रिंग बोल दो, हाफ साइड. So these half and this half are joined with the help of this CH2 bridge. Okay, तो ये जो हमारे टू कार्बन्स हो गए, इनको हमने क्या बोला? ब्रिज्ड हेड. and these will be known as two carbon bridge, means they are the other, not the part of the bridge. So in the center what carbon will be there, or in the center this line is known as the bridge. Sometimes the carbon is here, sometimes it may not be there. So ये जो आपका दो कार्बन कार्बन को जोड़ रहा है जो लाइन हमारी, उसको हमने क्या बोला है? ब्रिज. So in this example there is a one bridge, one carbon bridge. So you can see that these two are our bridge head. ये हमेशा ही होंगे और ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? वन कार्बन ब्रिज, क्योंकि इस ब्रिज में एक कार्बन प्रेजेंट होता है ना. तो आपने सिंपली इस स्ट्रक्चर को जब आप बुक में पढ़ते हो, फिनार की बुक देखोगे या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपने बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा रहेगा, राइट. सो व्हाट यू कैन सी दैट ये जो हमारा अगर ब्रिज है तो इसको हम तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर शो करते हैं, लाइक. सो नंबरिंग यू कैन सी दैट फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग, फ्रॉम अवर ब्रिज्ड हेड. सो वी कैन स्टार्ट द नंबरिंग लाइक 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है? 6 कवर हो गया, अब 7th विल बी गिवन टू दिस ब्रिज्ड हेड कार्बन. एंड हाउ द नंबरिंग इज डन. सो नंबरिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अभी ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल है, यहाँ पे दोनों साइड में टू कार्बन्स हैं, but when we will see the more example, then we have to follow the rules. So in this example how we will do the numbering? So in the starting, in the prefix you have to write bicyclo. In this ring 6 and 5 means only how many carbons you have to count. So how many carbons are present? 1 2. So you will write 2, then again 1 2, then 2, then at the bridge head only one carbon, so you will write 2 2 1. And how many numbers of the total carbon are there? 7. So we will write bicyclo 2 2 1 heptane, and the common name of this compound is norborane. So I hope this you understand. Now we can see some more examples. So so to understand our bicyclo compound, in the beginning you should know that there will be a bridge between the two fused rings. These rings are fused with the help of a bridge. So what we have to write the name of the parent alkane as the base name. In the beginning we will write bicyclo. The carbon atoms common to both the rings are called as the bridge head, and each bond or the chains of the atoms connecting the bridge head atom is called as the bridge. So now let us discuss some of the examples. So suppose when in the case of the bicyclo compound we will start the numbering from the more carbon atom. For example this is our bicyclo compound. तो यहाँ पर ये फ्यूज हो रहा है, तो if suppose it is getting fused here, so you can see numbering. यहाँ पर आपने दे दिया CH, ये भी आपका हो गया CH. This is आपका CH2, this is also CH2, this will be also CH2, 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 this will be also our CH2. Okay, so you can just see in this two position, is there any carbon in the center? No. So if such simple line is there for the bridge, we will write 0. ओके, अभी देखेंगे कैसे लिखेंगे. तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो आप पेन डाउन कर लीजिए. व्हाट विल बी योर रूल नंबर 1, दैट इज वी विल स्टार्ट नंबरिंग फर्स्ट द मोर कार्बन साइकिल. तो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4. इधर इस साइकिल में कितना है हमारा? अगर ये हमारी ब्रिज है ना, दिस इज अवर ब्रिज. सो
sorry, how many carbons are present in the cycle? 1 2 3 4. Okay, this side are 4, and now you see only 2 are here. So what numbering we will write? We will write here bicyclo. In the bracket you will write, first you will write our 4, then how many carbons are at 2, and in the bridge head there is no carbon, so we will write 0. And now total you can do that. So what numbering we will do? We will start from here 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So total are our 8. So what will be the name? Bicyclo 4 2 0 octane. Okay. So what you understand here? What is the rule? Numbering will start where the more carbons are present. In which cycle the more carbons are there, so we will write. And if there is no carbon in the bridge head, we will give 0, and small will be written after the bigger number. So simple compound क्या हो जाएगा आपका? Bicyclo 420 octane. Now next we can see this example. So it is also same. The bridge is a straight line, there is no carbon protruding outside. So in the bracket we will write the carbon atoms present on the rings. Okay, and we will not count the carbon which are present on the bridged head. Okay, ये count नहीं होंगे, but total carbon में ही count होते हैं. So how we will write the name? So 1, आपको big वाले cycle दिख रही है, it is having this side, and the small one is this. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So how we will write the name? Tell me. At position methyl group is present. Other rules will be same as our nomenclature, IUPAC nomenclature. So what we will write? First, substituent is present at the 8th position. So what you can write? 8 methyl. Then normally you write bicyclo. Now how many carbons are there? 1 2 3 4. So in the bracket we will write 4. Then here 1 2 and 3, and there is no carbon present in the bridge head, so we will write 0. So 8 methyl bicyclo 430 nonane is the name. Is it clear? Once again we will check it. तो आपका जो बड़ा वाला साइकिल है उसमें कितने कार्बन्स आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4. So you will write 4, then 1 2 3, and in this bridge head red line there is no carbon in the center, so we will write the 0. And substituent we have to write in the starting. So methyl is a substituent, so we will write 8 methyl bicyclo 430 nonane. So this rule. Then next rule is 0 is written when there is no functional group or the substituent present on the bridge head. ये मैंने पहले बता दिया आपको. Write the position of the substituent carbon. We have to write the position. जैसे इधर 8th position पर है तो आपने लिख दिया है. Now we can see the next example. So if suppose this is an example, there is one functional group, तो आपको numbering कहाँ से करनी है? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं तो नंबरिंग इज डन फ्रॉम द मोर. बड़ा वाला जो हमारा रिंग रहेगा ना, आपको क्लियर दिख जाता है बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है. तो 1 2 3 4 5 एंड इट इज अवर 6 7 8. सो हाउ वी विल राइट दिस? आप बताइए. 1 2 3 4 है ना, तो आपने लिख दिया ब्रैकेट में 4. इस साइड वाले रिंग में कितने 2 कार्बन्स हैं, सो यू विल राइट 4 2. एंड इन द ब्रिज वाले में एक भी नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? 0. बाईसाइक्लो 420. टोटल नंबर इज ऑक्टेन एंड थर्ड पोजिशन इज गिवन बाय द एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. तो इट इज अवर बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन 3 ऑल. सो क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन हमको, अगर ये हमको अल्कोहल बनाना है तो आपको इसको लास्ट में लिखना है. ओके, नेक्स्ट इज अवर this example. So now you see here ethyl substituent is present at the 8th position in both the cycle. Which ring is having the more carbon? I guess this one. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So parent carbon is hydrocarbon is nonane. So position of the this substituent is 8 ethyl bicyclo. In the bracket what we have to write? First 1 2 3 4 carbons, then 1 2 3 this carbon, and in the bridge there is nothing, so what you have to write? 4 3 0. So 8 ethyl bicyclo 430 nonane will be the name. Next let us see. This is a bit complicated, not complicated. We have, so you will find it like this. Now आपने देखा जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ब्रिज्ड हेड पर एक हमारा कार्बन भी प्रेजेंट है और साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है. तो उसको हम कैसे करेंगे? तो
देखो यहाँ पर हमको दिख रहा है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि आपने सब में कार्बन CH2 लिखा हुआ है ना, सो दैट्स वाई. सो जस्ट वी कैन सी दिस इज अवर CH, दिस इज अवर CH2, दिस इज ऑल्सो CH2, CH2, ओके. अब हमको नंबरिंग करना है, तो आपका बड़ा वाला रिंग दिस साइड विजिबल है, तो आपने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड इधर आ जाओ, ये 8th हो गया. ओके, ना यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे अब आप देखिए. तो पहले तो हमारी 8th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो आपने क्या लिख दिया बेटा, 8 मिथाइल लिख दिया. नाउ ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो बाईसाइक्लो लिख दिया. नाउ यू सी हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट, 1 2 3, तो आपने 3 लिख दिया. यहाँ पर कितने हैं, 1 2, तो 3,2. अब यहाँ पर चूंकि ये कैसी पोजीशन वाला है, नॉर्बोरेन आपको याद है ना, ये इस टाइप का है ना, तो आपका यहाँ पर 1 आएगा. ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है. क्लियर है, स्ट्रेट लाइन वाला ब्रिज में 0 लिखते हैं, बट ये स्ट्रेट लाइन वाला ब्रिज नहीं है, सो वी विल राइट इट एज ए 1 ऑक्टेन. सो पोजीशन ऑफ द हमने सब्स्टिट्यूएंट पहले दे दिया, 8 मिथाइल बाईसाइक्लो 3,2,1 ऑक्टेन. आई होप क्लियर है. तो ऐसे हमको रूल्स अगर लिखना है, तो नाउ इन द बिग रिंग यहाँ पर 3 कार्बन्स थे, दिस इज 1 2 3, and in the small ring 2 present, 8th position methyl group is present, and we can show this like this cap like structure. So और अगर हमारा वहाँ पे कोई नहीं होता है कार्बन बीच में, तो आप नॉर्मल लिखते हैं, ओवर 0 सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पे 0 लिखा जाता है ब्रैकेट में. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, एक सिंपल है ना, ये आपने देखा CH2 CH2. अब यहाँ पर भी कैसा वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला ब्रिज नहीं है, ये कैसा वाला ब्रिज दे रहा है, नॉर्मल. तो हमको क्या लिखना पड़ेगा इस कंडीशन में, 0 के 1. अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो 0 आता है, और अगर कैप लाइक हो जाता है तो वो कैसा आता है अपना, वहाँ पे 1 देना पड़ता है. अब इसको देखो आप, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग इस तरफ है. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 1 दिस साइड 1 दिस साइड. कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो. तो व्हाट विल बी द नेम, बाईसाइक्लो 1,1, and at the bridge head also 1, so you will write 1,1,1. Total number of carbon is 1 2 3 4 5. So numbering 1 2 3 4 5. So it is very simple structure, but जब देखते हैं तो थोड़ा सा complicated लगता है. Similarly next is like this. First you see the base structure. Okay, ये आपको दिख रहा है, एक रिंग आपका एक कार्बन है. नेक्स्ट रिंग में कितने कार्बन है, 1 2, इधर पे 2 कार्बन, एंड दिस इज 1 फ्यूज्ड. सो व्हाट विल बी द नेम, ट्राई करेंगे, बाईसाइक्लो. देयर आर 2, इस साइड केवल एक है, और हमारा ब्रिज हेड पर भी एक है, तो बाईसाइक्लो 2,1,1. टोटल कार्बन्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हेक्सेन. तो ये आपका इसका नॉमेनक्लेचर हो गया. एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पर भी आपको कैप्स दिख रहा है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड वी हैव टू राइट 1 और 0 फॉर द स्ट्रेट लाइन. तो कितना दिख रहा है हमको, फ्यूज रिंग इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है, 2 हैं. तो आपने क्या लिखना है, बाईसाइक्लो, इन द ब्रैकेट वी विल राइट 3,2, एंड एट द ब्रिज हेड 1 इज देयर, सो 3 2 1 ऑक्टेन. तो आई होप आपको समझ में आया होगा बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर. वन मोर एग्जाम्पल. So what one more example, you can see there are 3 oxygen attached ना, ऑक्सो ग्रुप हमारा जो कीटोन ग्रुप होता है ना, ओन ग्रुप. So how we will do the nomenclature, other rules are just like the IUPAC nomenclature, but first you write the simple name. So bicyclo, this side how many carbons are there, 1 2, this side also 2 carbon, but big हमारा जो बड़ा वाला रिंग है उस तरफ आप कहीं से भी हो सकता है, बट द 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड. सो नॉमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये थोड़ा सा डिफरेंस आया. पहले आपने क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन था ब्रिज में, फिर वहाँ पर एक हमारी कार्बन आई थी. अब ये वाले ब्रिज में कैसा आ रहा है बेटा, 2 आ रहे हैं. क्लियर हो रहा है आपको. एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं. ये ब्रिज हमारा चेंज हो गया, एक सिंपल वाला था, फिर एक ऐसा वाला ब्रिज आया, एक ऐसा वाला ब्रिज आ गया. तो जब ऐसा वाला ब्रिज आएगा ना, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, इसमें हम लिखते हैं 0, यहाँ पे 1. इन दिस केस वी हैव टू राइट द 2 इन द नॉमेनक्लेचर, एंड वी हैव टू गिव द पोजीशन ऑफ अवर ऑक्सीजन्स ketone group. So now the name will be bicyclo 2.
These are the 2 carbons, then this side also 2 carbon, 2 comma 2, and these are our bridged head position also 2 groups can come, so 2 comma 2 comma 2, and the position of our own group 2 3 5 trione octane. Okay, so or we can just be bicyclo 2 comma 2 comma 2 2 3 5 octane trione, anything you can write. So सिंपल वन मोर एग्जाम्पल, ये वाला देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा 1 वाला ही है, साइकिल में हमको बड़ा दिख रहा है दिस साइड, तो नंबरिंग वी आर डूइंग 1 2 3 4। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? फ्री 1 2 3, तो व्हाट वी विल राइट? बाईसाइक्लो इन द ब्रैकेट यू विल राइट 3 कॉमा हाउ मेनी दिस साइड 1 2, यहाँ पर केवल 2 ही हैं, और ब्रिज हेड में कितने कार्बन्स दिए हैं? 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? 3 2 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्टेन। तो दिस विल बी द नेम ऑफ अवर ऑक्टेन हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ वी विल सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरेंस। Spiro compounds are the compounds which have at least 2 molecular rings with only one कॉमन एटम। ओके, तो आपने अभी देखो इस स्ट्रक्चर में ये 2 ट्राइंगल से दिख रहे हैं आपको, बट यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 3 है ये कॉमन पोजीशन हो जाएगा दोनों रिंग्स के लिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 रिंग्स ज्वाइंट रहती हैं बाय द क्वाटरनरी कार्बन एट द एपेक्स, टिप्स पर वो जुड़ी रहेंगी, और उन ऐसे कंपाउंड्स में हम आगे क्या लिखते हैं? प्रफिक्स लिखते हैं स्पाइरो। एंड दीज आर द कंपाउंड्स दे हैव एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूलर रिंग्स, 2 rings with only 1 common atom. They will share 1 common atom. For example, इसका नेम कैसे लिखेंगे? This side also there are 2, this side also there are 2. So what we will write simply? Spiro 2 comma 2. Now the total number of carbon is our pentane. So some rules will be different in this spiro. सो बाईसाइक्लिक में आपने क्या करते थे? आप बड़ी रिंग को पहले प्रायोरिटी देते थे, बट इन दिस केस ऑफ द स्पाइरो कंपाउंड्स हमको क्या करना पड़ता है? जो छोटा वाला साइकिल रहेगा, छोटा वाला रिंग रहेगा, उसकी हमें नॉमेनक्लेचर नंबरिंग पहले करेंगे। तो आप ये देखिए एग्जांपल, तो ये हमने क्या लिखा है? रूल, वी गिव द नंबरिंग फर्स्ट टू द स्मॉल रिंग एंड राइट स्मॉल नंबर फर्स्ट, एंड प्रफिक्स तो स्पाइरो लिखना है, ब्रैकेट में हम नंबर देंगे और हमारा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन आएगा वो आ जाएगा। तो अब देखते हैं, आपने स्मॉल वाले पे कर दिया स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्मॉल वाले में कितने हैं? 1 2 3 है। ये जो हमारा जो कॉमन है उसको काउंटिंग नहीं करेंगे हम, तो हमको कितना लिखेगा? स्मॉल रिंग में कितना दिख रहा है? 3, एंड बिग रिंग में कितने दिख रहे हैं? 4, तो क्या नाम हो जाएगा? स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन। स्मॉल रिंग कार्बन पहले लिखना है, बिग रिंग कार्बन को हमको बाद में लिखना है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सिंपल है स्पाइरो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, और इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक वाले लिए हैं जिससे कि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और आपके ऊपर है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विल बी डन फ्रॉम द स्मॉलर साइड, तो 1 2 3 देयर आर 3 एटम्स, यहाँ पर कितने हैं? देन 4 5 6 7 8, सो वी नो 5th पे आपका डबल बॉन्ड दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एल्कीन वाला कंपाउंड हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर सिंपल होगा आपका, स्पाइरो 3, देर आर 3 ना, 1 2 3 स्मॉल रिंग के पहले आएंगे, देन 1 2 3 4 एयर, तो ये बाद में आएंगे 4, देन कंप्लीट हो गया। ना ऑक्टेन नहीं लिखते हम इसको, बट 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो नेम विल बी ऑक्ट 5 इन। ऑलवेज डबल बॉन्ड किस कार्बन के पीछे होता है ना, वो नाम आता है, तो 5 के पीछे है तो 5 इन हो जाएगा। ओके, देन दिस कार्बन वी कैन डू द नॉमेनक्लेचर। स्मॉल रिंग दिस साइड है तो आपने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नेम क्या हो जाएगा हमारा? स्पाइरो, ब्रैकेट स्टार्ट, हाउ मेनी आर इन द स्मॉल रिंग? 1 2 3 4 4 कॉमा, बड़े वाले रिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5, स्पाइरो 4 कॉमा 5, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं? 10, तो क्या हो जाएगा आपका ये? डेकेन। ईजी है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देन नेक्स्ट जस्ट यू कैन सी, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप वाले एग्जाम्पल ले लिए हमने, तो स्मॉल कार्बन आपको दिख ही रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैंने लिखा है कि नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स जैसे हम IUPAC में फॉलो करते हैं सेम रहेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट है, अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप है,
किस पोजीशन पर है, 5 पर। तो पहले आप नॉर्मल नेम लिख लो। तो स्पाइरो इधर पे कितने हैं, 2 हैं, तो आपने 2 लिख दिया। बड़े रिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 4। टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने क्या लिख दिया, स्पाइरो 2,4 हेप्टेन, बट 5th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, तो वो आपने प्रीफिक्स में लिख देंगे सब स्टूडेंट्स, 5 अमीनो स्पाइरो 2 4 हेप्टेन. So now we will do the nomenclature of the next compound. Similarly, we have to see the small ring first, 1 2 3 at the center apex point. Then oxygen is present, one oxo group is present at the 5th position. So what we will write, 5 oxo spiro, in the bracket we will write 1 2 3 3, and how many are here, 1 2 3 4 4 octane. So this will be your spiro, 5 oxo spiro 3 4 octane. Total you have to count always. Next example, यहाँ पर हमने 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारा ऑक्सो सब्स्टिट्यूएंट है. तो स्मॉल रिंग में नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो पेरेंट कंपाउंड हमारा डेकेन हो जाएगा. बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पोजीशन पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सो ग्रुप है. तो डेक 2 ऑन आपका क्या हो गया, पेरेंट कीटोन मान लिया आपने. देन सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे 7 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 7,7 डाई मिथाइल स्पाइरो 4,5. सो हाउ मेनी आर इन द स्मॉल रिंग, 1 2 3 4, एंड बिग रिंग में 1 2 3 4 5. तो आपने 4,5 डेक 2 ऑन लिख दिया. एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर क्या है, 7th पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो हमने क्या लिख दिया, 7 7 डैश डाई मिथाइल. देन स्पाइरो 4,5. Small ring have the 4 substituents, big ring have 1 2 3 4 5 carbons. So 4,5 डेक 2 ऑन मीन्स ये डेकेन होता, लेकिन यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. तो कीटोन ग्रुप को अगर हम लास्ट में लिखते हैं तो क्या आता है, ऑन आता है. पहले लिखते हैं तो ऑक्सो आता है ना. तो डेक 2 ऑन इज द नंबरिंग स्टार्ट्स इन द स्मॉल रिंग वेयर द सब्स्टिट्यूएंट इज नियरेस्ट. तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट था, तो इधर हमने पोजीशन दिया उसको. Now I hope this video is clear to all of you. One last example. So यहाँ पर अपने स्मॉल रिंग है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. सो व्हाट विल बी द नेम, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो स्पाइरो 2 1 2 3 4 5 स्पाइरो 2,5 ऑक्टेन. वेरी सिंपल है ये. आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा. इफ़ एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन टाइप मी. Okay, thanks for watching the video. Do subscribe the channel, and what videos you want you can just write in the comment box.